Hello students, welcome back to our online classes. I am back with a new video students of subject science students. So in the previous video I have completed your two chapters, first chapter and the second chapter of the subject science students. So today in this video obviously you can see in the screen above here that we will like to start our subject science chapter 3 students, and that is fiber to fabric. So we will like to start our chapter 3 of science, fiber to fabric students. So let's begin. We will not waste our time students, because time is very much precious, right students? So let's get started. So our chapter 3 is about fiber to fabric, class 6. So let's begin our topic. You can see over here in your screen students, that is easy. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen muffles and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they brought a woolen muffler and a cotton sari, students. So students, there is two person, पहेली एंड बूजो, उन्होंने एक कंपटीशन जीता था, क्विज कॉम्पिटिशन्स. सो उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्राइज़ मनी मिली थी. उनको क्या मिली था? प्राइज़ मनी, पैसा मिला था. तो उन्होंने ये सोचा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ खरीदेंगे. तो वो लोग एक मार्केट में गए थे. सो व्हेन दे हैव रीच टू द मार्केट स्टूडेंट्स इन द शॉप, दे हैड सॉ अ गुड वेराइटी ऑफ क्लोथ्स ओवर देयर इन अ वेरी डिफरेंट वेराइटीज़. वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेराइटीज़ थे स्टूडेंट्स. सो व्हाट दे थॉट, दे वर सो मच कन्फ्यूज. वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे स्टूडेंट्स. सो उसके बाद जो शॉपकीपर है उन्होंने उसे बताया कि ये एक सिल्क है, ये वुलन है, और ये अलग अलग वुलन मफल्स है जिससे शॉल बनते हैं. सो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ देखे और उन्हें टच किया स्टूडेंट्स. सो टच करके उन्हें पता चला कि ये क्या कैसी क्वालिटी है स्टूडेंट्स. देन आफ्टरवर्ड्स दे हैव चूज़ वुलन मफल्स और कॉटन साड़ी. उन्होंने क्या खरीदा? वुलन मफल्स और कॉटन साड़ी उन्होंने दोनों ने खरीदा स्टूडेंट्स. After their visit to the cloth show, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Full stop. Can you also identify some fabrics? Question mark. So students, when they have purchased the silk sari and the woolen, right, you can see they have visited the cloth shop. After visiting it, they had noticed a lot of varieties of fibers, फैब्रिक्स. बहुत सारे फैब्रिक्स के बारे में उनको पता चला स्टूडेंट्स. लाइक कि बेडशीट की क्या क्वालिटी होती है, ब्लैंकेट्स कैसे होते हैं. आप एक देख सकते हो पिक्चर में स्टूडेंट्स, एक क्लोथ शॉप है. वहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि कितने सारे वेराइटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी है. एक वहाँ पे साड़ी लटकी हुई है फ़ैन के नीचे में स्टूडेंट्स, राइट. सो दिस इज़ अ शॉप. सो उन्हें ये पता चला कि बहुत अलग अलग वेराइटीज़ की क्वालिटीज़ होती है, और दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देयर क्वालिटीज़ स्टूडेंट्स. सो उनको तो ये भी पता चला कि जो आप लोग के स्टूडेंट्स, जो आप लोग के स्कूल बैग्स होते हैं वो भी एक फैब्रिक से बना हुआ होता है. जो गिनी बैग्स होते हैं वो भी एक फैब्रिक से बना हुआ होता है. और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में जानने लगे. तो जैसे कि मैं आपको भी बताने वाली हूँ जो अलग अलग फैब्रिक्स है स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ वी विल आइडेंटिफाई ऑल दैट फैब्रिक्स. So let's see
3.1 वेराइटी इन फैब्रिक्स. ये क्या है? वेराइटी इन फैब्रिक स्टूडेंट्स. सो एंड दिस वन इज एक्टिविटी 1. Visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk and wool or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? So students, in the 3.1's activity 1 is telling that you have to go to the tailoring shop. जो टेलर होते हैं उनके शॉप में आप जाओ, उनके जो लेफ्ट ओवर्स पीसेस होते हैं उनको आप कलेक्ट करो. ओके. उसके बाद स्टूडेंट्स आपको चूज़ करना है, आपको सिलेक्ट करना है, बताना है कि कौन सा वुलन क्लोथ्स है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा सिल्क है और कौन सा वुल है स्टूडेंट्स. तो ये, और इसमें आप अपने टेलर की भी हेल्प ले सकते हो स्टूडेंट्स. तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपको पता चलेगा कि वो कौन सी क्वांटिटी और क्वालिटी की है स्टूडेंट्स. तो इसके थ्रू आपके फैब्रिक्स के रिलेटेड डिटेल्स आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा स्टूडेंट्स. ओके. Now see the activity 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible, you are gently pull one out with a pin or a needle. We find that the fabric is made of yarns arranged together. What are these yarns made of? So students, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको एक टास्क दिया गया है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो. एक क्लॉथ लो जो आपने एक्टिविटी 1 में चूज़ किया, वैसा सिमिलर एक क्लॉथ आप लो और उसके जो लास्ट की जो पॉइंट होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट की ये जो इसने कैसे खींच रहा है, वो खींचोगे आप तो उससे आपको पता चलेगा कि वो कौन से फैब्रिक से बना हुआ है ईजिली, क्योंकि उसकी जो थ्रेड होता है वो थ्रेड निकल जाएगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वन यू कैन अंडरस्टैंड दैट विच टाइप ऑफ क्वालिटी और material is it all about students. Okay, so try that one in your home because your parents will definitely know it. Your mother especially will teach you about this topic, that which type of fabrics is it students. Okay, so you will be very much knowledgeable. Now we will discuss 3.2 fiber. FIBRE fiber students. This one is also an activity 3. देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ राइट स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसमें है. सो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find this at this end? The yarn splits up into thin strand. So students, इसमें ये बोल रहे हैं जैसे आपको एक धागा लो, उसको आपको पकड़ना है, उसमें से एक थंब के थ्रू यहाँ से ऐसे पकड़ के रख देना है. फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद कि जो स्प्लिट है यार्न की जो थ्रेड है वो स्प्रेड हो जाएगी. आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्रेड हो गई है. सी यहाँ पे एक स्ट्रेट है और यहाँ पे अब देखो ये स्प्रेड हो गई. ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये स्प्रेडेबल हो गई है. राइट स्टूडेंट्स, ट्राई दिस वन एट योर होम ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ योर मदर राइट नाउ, बिकॉज आप अभी स्कूल में होते तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करवाती ही स्टूडेंट्स. You might have observed something similar when you try to thread a needle. आपने कुछ ऑब्जर्व करोगे जब आप ये चीज़ करोगे कि थ्रेड नीडल में आ नहीं पा रहा है. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. So students, क्या हुआ इससे ये होता है कि
जब वो जो थ्रेड होता है उसके पोर्शन, जैसे ये आपने देखा यहाँ पे ये इस तरह से ये जो पोर्शन ओपन हो जाता है ना स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी मच हार्ड टू पुट दैट वन इन द नीडल। जो आई ऑफ द नीडल्स होते हैं ना उसमें ईजिली ऊपर अंदर नहीं जा पाता है वो। आपने देखा होगा आपकी मॉम लोग जब सिलाई करती हैं तो जो थ्रेड होता है वो ईजिली उसके अंदर नीडल के अंदर नहीं जा पाता है, बाई चांस उसके 2 फेस हो गए होते हैं तो ओनली। इफ़ उसके एक फेस है तो वो तो ईजिली चला जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। सो बिकॉज वाई, बिकॉज दैट वन इज़ सेपरेटेड, वो अलग हो गया होता है इसलिए। तो वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं जो थिनर स्टिल रह जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। Fabrics are made of yarns and yarn are further made up of fibers. Where do these fibers come from? जो फैब्रिक होते हैं वो यार्न से बनते हैं, थ्रेड्स से बनते हैं, और जो ये थ्रेड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं स्टूडेंट्स, राइट। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज क्या है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वुल है। और ये कहाँ से पाया जाता है, हमें प्लांट और एनिमल्स से हमें मिलता है ये चीज़ स्टूडेंट्स, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स हम लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये प्लांट और एनिमल से मिलता है स्टूडेंट्स, ओके। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट है वो एक एग्जाम्पल है जो हमें प्लांट्स से पाए जाते हैं, और वुल और सिल्क हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से, राइट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट, यू नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। सो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लर्स ऑफ शिप और गोट। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकन ऑफ सिल्क वॉर्म। सो स्टूडेंट्स, शिप और गोट से हमें मिलते हैं वुल, और कैमल से भी मिलते हैं, रैबिट से भी मिलते हैं और याक से भी मिलते हैं। और सिल्क जो है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म और कुकुन से मिलता है स्टूडेंट्स। आपको पता ही है ये चीज़ बहुत अच्छे से, उससे हमें ये चीज़ मिलती है स्टूडेंट्स। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. So students, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत 100 ईयर्स पहले से क्या था कि जो नेचुरल फाइबर्स है वही होते थे पहले, बहुत पहले के टाइम में स्टूडेंट्स, ओके। बट नाउ अ डेज दे आर हैविंग अ केमिकल फाइबर्स ऑल्सो। अभी के टाइम में केमिकल फाइबर्स भी पाए गए हैं, मेड अप वेरी ईजिली। तो वो जो केमिकल फाइबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। आपने देखा होगा जब आप अपनी मदर्स के साथ या फादर के साथ गए होते हैं कोई कपड़े लेने के लिए, क्लोथ लेने के, तो वो लोग बोलते होंगे कि ये तो सिंथेटिक है, दैट इज़ नॉट सो गुड। वाई, बिकॉज दैट इज़ इन अ केमिकल फॉर्मेशन, केमिकली दैट हैव बीन क्लिप्सड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ देयर, पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक, दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स स्टूडेंट्स। ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। So students, now we will discuss 3.3 and that is some plant fibers, जिससे प्लांट के थ्रू जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द कॉटन। कॉटन ऑब्वियसली द वाइट कॉटन्स दैट हैव बीन गिवन बाय विद द हेल्प ऑफ द प्लांट। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. हम लोग जो दिया करते हैं वो दिया की जो किससे बनता है, जोत, वो बनता है कॉटन से बनता है वो स्टूडेंट्स। वो जो जिया जिसको हम लोग जलाते हैं वो किससे बनता है, कॉटन से बनता है। और ये जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादातर पिलोज़ में काम आते हैं, मैट्रेस में आते हैं और क्विल्स में आते हैं। कुछ जो जिस चीज़ में हम लोग सोते हैं वो सब चीज़ों में कंफर्टेबली मिलते हैं हमें। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक इट एट इट्स एजेस।
What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It is grown in the field. ये कॉटन फील्ड्स कहाँ, कॉटन वूल कहाँ से हमें मिलते हैं? हमें फील्ड में से मिलते हैं. देखो आप पिक्चर में देख सकते हो फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, कितने ब्यूटीफुल है स्टूडेंट्स, राइट. मैंने एक्चुअली अपनी आँखों से देखा है कॉटन फील्ड्स को, ये जो पूरे फील्ड होते हैं उसमें देखा है, और ये सारे कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. आप देखो पिक्चर में white as in flowers, it looks like flower, but it is all cotton balls. Cotton plants are usually grown at places having black soil और warm climate. जो black soil और warm climate होते हैं वहाँ पे ही ये सारे cotton wools बनते हैं. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. ये जो cotton balls होते हैं वो एक lemon के size के होते हैं. नींबू होते हैं, नींबू के size के होते हैं ये cotton balls. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. See, आप ये देख सकते हो पिक्चर में कि ये ब्लास्ट हो जाता है और ये फैल जाता है. तो ये जो फैल जाता है वो कॉटन बॉल्स ही होते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉटन वूल होते हैं. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? यस, आई हैव सीन दैट वन स्टूडेंट्स, मैंने देखा है ये चीज़. इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो. यस, ये पूरा का पूरा वो जो फील्ड होता है कॉटन का वो ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरा का पूरा स्नो से भर गया हो. स्नो गिरा हो तो वो स्नो से कवर हो गया हो स्टूडेंट्स. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. तो ये जो बॉल्स होते हैं कॉटन बॉल्स वो हाथों से ही लिए जाते हैं. Fibers are then separated from the seeds by combining. This process is called greening of cotton. Greening was traditionally done by hand. These days, machines are also used for greening. So students, ये लोग हाथों से कैप्चर करते लेते हैं, राइट. उसके बाद ये जो सीड्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं, फाइबर्स और सीड्स को सेपरेट करते हैं, और जो ये प्रोसेस होता है उसको क्या बोलता है? गीनिंग ऑफ कॉटन. ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? गीनिंग ऑफ कॉटन. सो जो गीनिंग है वो एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है जो हाथों से होता है. स्पेशली देखो आप देख सकते हो पिक्चर में. और नाउ अ डेज मशीन्स ऑल्सो यूज्ड फॉर गीनिंग. पहले टाइम में हाथों से ही ये चीज़ होता था, नाउ अ डेज मशीन के थ्रू भी ये चीज़ होता है स्टूडेंट्स. ओके, सी आप पिक्चर में देख सकते हो गीनिंग ऑफ कॉटन. ये किस तरह से हाथों से उसको स्लैश कर रहे हैं वैसा लग रहा है. नाउ वी विल सी जूट. जूट क्या होता है? अब हमने पहले कॉटन की बात की जो प्लांट से हमें मिलता है. नाउ वी विल सी जूट स्टूडेंट्स. सो लेट्स सी इट. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जो जूट फाइबर है वो हमें जूट प्लांट से मिलता है स्टूडेंट्स. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. ये जो जूट प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन के टाइम में होता है इन स्टूडेंट्स. और इंडिया में ये जूट कहाँ पे मिलता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार और आसाम में मिला जाता है. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स are immersed in water for a few days. The stems, root and fibers are separated by hand. So students, ये जो जूट प्लांट होता है वो बहुत easily हार्वेस्टेड होता है जब उसके फ्लावरी स्टेज हो जाते हैं, जब उसमें फ्लावर आ जाता है. फ्लावर आता है तो हमें पता चलता है कि ये जूट रेडी हो चुका है स्टूडेंट्स. उसके बाद उसके जो स्टेम्स होते हैं वो पानी में रखे जाते हैं बहुत दिनों तक. देन फिर जो फाइबर्स होते हैं उसको अपने हाथों से उसको सेपरेट कर देते, अलग कर देते, जूट को अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स. ओके, ये आप पिक्चर में देख सकते हो अ जूट प्लांट. दिस इज़ अ जूट प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, कितने सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स है स्टूडेंट्स जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जान पाते कि ये किस चीज़ के यूज़ है.
और ये सब चीज़ें ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्टूडेंट्स. नाउ वी विल सी दिस वन. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? So students, ये जितने भी हमने प्रोडक्ट्स अभी तक में देखे, फाइबर्स, फैब्रिक्स, वो सब फैब्रिक्स बनना होगा उसके पहले उसको यार्न में चेंज किया जाता है. तो हम लोग इसके बाद क्या सीखेंगे? स्पिनिंग कॉटन यार्न्स. तो हम लोग यार्न में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये वीडियो यहाँ पे ही होल्ड ऑन रखते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग. दैट उसके बाद क्या होता है, राइट? हमने कॉटन के बारे में बात किया, जूट के बारे में बात किया. अब वो जब हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं, उसको चूज़ कर लेते हैं, फिर जाके क्या होता है वो हमें जानना है स्टूडेंट्स, राइट? सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देयर स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू डू से your homework is that you have to read this chapter, okay? And the students who doesn't have your textbook, you should have to watch this video, okay students? So if students, there is one more thing I wanted to tell you is that if you have liked my video students, and I hope that I had make you understand this about this chapter, so then students, do please like, share and subscribe students, okay? Because if you will like and share and subscribe, I would be very much happy to know that about that you have understood my knowledge about this topic. So till then students, I will see you in the next video. Bye bye. Stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. Bye bye.